नाजरीन, मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय Need-Based Hospital and Medical Institute, School of Competition under CBSE Board. ग्लोबल वॉलपेपर कलेक्शन विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन। GR स्कूल सोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। अहम तरीन खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों के दरमियान भिड़ंत की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। जी हां, वायरल वीडियो का सच जानने हमारे रिपोर्टर पहुंचे कॉलेज, जहां हमने स्टूडेंट एसोसिएशन के कॉन्वेनर औबीक से बात की ताकि मामले को समझा जा सके। इन्होंने बताया कि हम लोग 18 मार्च को TMCP स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले ब्लड डोनेशन कैंप कॉलेज के अंदर करना चाहते थे, पर इसकी इजाजत कॉलेज की तरफ से नहीं दी गई और इसी को लेकर बच्चे कॉलेज गेट पर प्रोटेस्ट करने लगे और इस दौरान बताया जा रहा है कि कॉलेज गेट बंद कर दिया गया, जिससे सभी स्टूडेंट्स यहां फंस गए और माहौल बिगड़ता गया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल PP भट्टाचार्य ने भी इस झड़प की खबर को कबूला है और उन्होंने कहा है कि विवाद बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी बातों से उन्होंने इनकार करते हुए बताया है कि इस दौरान एक शख्स जख्मी भी हुआ है। आइए दोनों पक्षों की बातों पर डालते हैं एक नजर। আমাদের একটা আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে চেয়েছিলাম। আমাদের ছাত্ররা মিলে গরমকালে ব্লাডের খুব সমস্যা চলছে, বিভিন্ন হসপিটালে ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড নেই, সেই জন্য আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছেলেরা সবাই উদ্যোগ নিয়েছিল যে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করলে অনেক মানুষের উপকার হবে। তো সেইটার জন্য আমরা প্রিন্সিপালের থেকে পারমিশন নিতে এসেছিলাম যে আমরা যদি ভেতরে একটা রুম পেতাম, বাইরে করলে অনেকজন অসুস্থ হতে পারে এই গরমের মধ্যে। তো প্রিন্সিপাল স্যার সেটারই পারমিশন দিচ্ছিলেন না। তারপরে আমরা অল্প সব ছেলেরা মিলে আন্দোলন করলাম এখানে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে, যে ব্লাডের ব্যাপার আছে এখানে, তারপর কিছু ইন্টারনাল ইস্যু আছে CA এক্সাম নিয়ে, সেই জন্য ছেলেদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে হয়ে কাজ করলাম। তো তার মাঝে একটুখানি প্রবলেম হয়েছিল, কিছু এক দুজন ছেলের মাঝে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো নিজেদের মধ্যে। তো তাদের মধ্যে একটু ঝগড়াঝাটি লেগে যায়, ওটাও ইন্টারনাল ব্যাপার, অন্য ম্যাটার, এটা ব্লাড ডোনেশনের কোনো ম্যাটার নেই এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ব্যাপার, একটা মানে দুজন ছেলে একজনের সাথে পার্সোনাল প্রবলেম ছিল, তো তাদেরকে সরাতে গিয়ে আমার লেগে যায় একটুখানি, একটা ওদের মারামারি কন্ডিশন হয়ে গেছিলো, তাদের সরাতে গিয়ে হাতাপাইতে মাথায় হালকা লেগে গেছে। এবার এই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যানারে এর আগে কোনোদিন কোনো অনুষ্ঠান কি কলেজে হয়েছে না এই প্রথম? এটা হচ্ছে টোটালি আমরা নন পলিটিক্যাল ওয়েতে এটা শুরু করেছিলাম এই আপনার অ্যাসোসিয়েশনটা, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্ররা অনেক রকমভাবে হিউমিলিয়েট হচ্ছে, যার জন্য আমাদের এখানে রুলিং পার্টি যেহেতু TMCP, সেই জন্য আমরা বিভিন্ন নেতৃত্বের কাছে গিয়ে আবেদন করেছি। যেমন ফিজের ব্যাপারে অনেক এরা ফাইন নিয়ে নেয়, একটু একদিন লেট হলেই 15 টাকা 30 টাকা করে ফাইন হতে হতে 4-5 হাজার টাকা হয়ে যায়। সেইগুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন ছাত্র পরিষদ যেহেতু আছে, এটা তো প্রাইভেট কলেজ, এখানে আমরা ইউনিয়ন করি না, তো এবার ছাত্র পরিষদের কাছে গেছিলাম। এবার স্টুডেন্ট চাইছে, ছাত্ররা যদি চায় যে এইখানে আমরা অ্যাসোসিয়েশন করবো, তা ভেতরে নয়, দেখুন বাইরে লাগিয়েছে যে আমরা সব ছাত্র পরিষদের মেম্বার, আমরা করতে চাই। কেন করতে চাই আমি এটা প্রশ্ন করেছিলাম বিভিন্ন আমাদের ছেলে মেয়েদের, তখন একটি মেয়ে আমাকে উত্তর দিয়েছিল যে আমরা মমতা ব্যানার্জির কন্যাশ্রী পেয়েছি, আমরা মমতা ব্যানার্জির দেওয়া ট্যাব পেয়েছি, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড পাচ্ছি, তাহলে আমরা বাইরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কেন করবো? কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো রকমভাবে পারমিশন, ভেতরে প্রাইভেট কলেজ যেহেতু আমরা ঢুকিও না, ভেতর দিয়ে করিও না, আমরা সম্পূর্ণ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ভেতরে হবে, আমরা তো কোনো ব্যানার লাগাবো না, এটা তো সোশ্যাল ওয়ার্ক, একটা সোশ্যাল, আমাদের যাতে কেউ প্রবলেমে না পড়ে, কেউ যাতে অসুস্থ না হয়ে যায় ব্লাড দিয়ে, ভেতরে সোফার সিস্টেম করা আছে, সেই জন্য আমাদের বলা হয়েছিল। আমরা ভেতরে কোনো ব্যানারও লাগাতাম না, আমাদের জাস্ট ব্লাডটা নেওয়ার জন্য ভেতরে 4টে আমরা বেড রাখতাম। কিন্তু আপনাদের সংগঠনের তো কি লেখা আছে, আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, TMCP কি লেখা আছে? লোগো রয়েছে। কেন আমরা একটা অ্যাফিলিয়েশন চেয়েছি, যে আমাদের যখন আমরা বিভিন্ন রকম ইস্যু ফেস করছি, সেখানে সবসময় তো আমরা তো দেখুন এখানে স্টুডেন্ট, ওইখানে আমি পাস আউট, ঠিক আছে 2019 সালে আমি পাস আউট, কিন্তু বাকিরা তো সব স্টুডেন্ট আছে, তারা এবার একটা অত বড় ম্যানেজমেন্টের এগেনস্টে লড়াই করা তাদের পক্ষে পসিবল না। কোনো এখনও কিচ্ছু মেম্বার করা হয়নি, তারা নিজেরাই একটা কমিটি বানিয়েছে সব স্টুডেন্টদের নিয়ে, হোয়াটসঅ্যাপ আপনারা জানেনই,
হোয়াটসঅ্যাপে নিজেরাই ছাত্ররা উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রুপ করেছে, গ্রুপে ওরা জয়েন করেছে, ওরা বিভিন্ন টাইমে বিভিন্নভাবে আমাদের নেতৃত্বের কাছে যায় সাহায্য চাওয়ার জন্য। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড হোক বা বিভিন্ন রকম ইস্যু নিয়ে আমাদের কাছে যায়। আমাদের জেলা নেতৃত্ব, তারপর কর্পোরেশন থেকেও বিভিন্ন রকমভাবে ছাত্রদের হেল্প করা হয় যাতে তারা এগিয়ে যেতে পারে। তো কলেজ কর্তৃপক্ষ তো কোনো মতে মানবে না এই মানে ইউনিয়ন কলেজ কর্তৃপক্ষ এখন আসতে হয়েছে, অ্যাসোসিয়েশনে ওরা বিরুদ্ধ করে না, কিন্তু ওরা বলতে চাইছে শনিবার আমাদের প্রোগ্রাম আছে। ওরা বলছে শনিবার আমাদের কলেজেরই নিজস্ব প্রোগ্রাম আছে, যার জন্য আমরা পারমিশন দিতে পারছি না। ছাত্ররা মারধর করেনি, দুজনের সঙ্গে ওইখানে একজনের সঙ্গে পুরনো ইস্যু ছিল, একটা পাস্ট ইস্যু, সেইটা নিয়ে ওরা যখন দুজনে মুখোমুখি হয়েছে ওদের দুজনের মধ্যে ঝামেলা লেগে গেছে। পুলিশ এসেছিল তাহলে কি? পুলিশ এসেছিল ওই যে মারপিটের জন্য। আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানালাম যে দুজন ছেলে এরা করেছে, এদের বিরুদ্ধে আপনারা ব্যবস্থা নিন। এরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের ছেলেও নয়, যাদের সঙ্গে হয়েছে তারা টোটালি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনেরও ছেলে নয়। তাহলে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা কি হবে? ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প যেমন হওয়ার তেমন হবে, বাইরে হবে দরকার হলে। আমরা তো সমাজসেবা থেকে পেছনে যাব না কিছুতে। নাম আপনার? আমার নাম অভিক ব্রহ্ম, আপনি কি কোন পদে আছেন? আমি এই কলেজে কনভেনার। হ্যাঁ, গন্ডগোল সেরকম কিছু না। আমাদের আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে চাইছিল 18 তারিখ। তো তার জন্য তারা কলেজের মধ্যে স্পেস চাইছিল করার জন্যে। তো আমাদের কলেজে এখন অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি চলছে পরপর, সেই কারণে তাদের স্পেস দেওয়া সম্ভব হয়নি। তো ওরা সেটা মানতে চায়নি এবং কলেজের গেটটাকে ওরা বন্ধ করে দিয়েছিল, বন্ধ করে স্টুডেন্টদের যাওয়া আসাটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। তো সেই নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত আর কি। তারপর মাঝে হোস্টেল থেকেও কিছু স্টুডেন্ট আসে, তাদের সাথেও একটুখানি ঝগড়াঝাটি মতো হয়ে যায়। তো এটাই এখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। তো এরকম মানে তৃণমূল কংগ্রেসের না, এর আগে হয়নি। এই অ্যাসোসিয়েশনটা কি নতুন হলো না আগে অনেকদিন? না, নতুনই হয়েছে। কি কলেজ কর্তৃপক্ষ কি ভাবছে এই অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে? ঠিক আছে, সবাইকে নিয়েই তো চলতে হবে, স্টুডেন্টদের জন্যই তো কলেজ, ওরাই তো মেন স্টেক হোল্ডার। তবে সব মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই মিটে গেছে, বেশি কিছু গন্ডগোল হয়নি। তো দেখা যাক। যারা এসেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বা অ্যাসোসিয়েশনের নাম করে, তারা কি কলেজের এখনকার স্টুডেন্ট না এক্স স্টুডেন্ট? ম্যাক্সিমামই বর্তমান স্টুডেন্ট। কি মনে হচ্ছে তারা কি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা কি 18 তারিখ হবে না? সেটা আমি বলতে পারছি না, সেটা ওনাদের ডিসিশন। কারো চোট লেগেছে? হ্যাঁ, ওটা নিজেদের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ঝামেলা মতো হয়েছে। কয়জন ইনভলভ আছে? একজন হবে হার্ডলি, সেরকম কিছু না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। दानिशगा इस्लामिया हाई स्कूल के मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट के शोबा हिफ्ज मा तजवीद की जानिब से आज यानी 16 मार्च को तकमील कुरान करीम व दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया था। यहाँ बता दें कि इस बार 4 बच्चों ने यहाँ से हिफ्ज कुरान पाक मुकम्मल किया है, जिनमें हाफिजा बच्ची का नाम खंसा सैफ है। वहीं शेख तकी इब्राहिम, यहिया तहूर, अब्दुल रहमान, इन सभी बच्चों ने भी हिफ्ज कुरान पाक मुकम्मल किया है और इन्हीं के एजाज में आज ये महफिल सजाई गई थी। इस महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पहुंचे मौलाना सऊद आलम और इन्होंने ही इस मजलिस में इख्तिताम की दुआ पढ़ी। इनके अलावा डायरेक्टर हाजी अब्दुल रऊफ, मुफ्ती हस्साम, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम वगैरह भी यहाँ मौजूद थे। जहां हाजी अब्दुल रऊफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि 17 सालों से, जी हां 17 सालों से ये इदारा चल रहा है और अब तक 27 बच्चों ने हिफ्ज मुकम्मल भी किया है। वहीं 118 बच्चों ने नाजरा तालीम हासिल की है और यही इस इदारे की खूबसूरती भी है। वहीं शोबा हिफ्ज के हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि इस मजलिस में बच्चों के गार्जियन हजरात ने भी शिरकत की और बच्चों के दरमियान कई तरह के मुकाबले का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें इन्हें इनामात से भी नवाजा गया है।
अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो तकरीबन 17 साल होने जा रहा है, जिसमें दर्जा हिंद के अलावा सुबह 7 था 9 बजे और उर्दू मीडियम और शाम में इंग्लिश हिंदी मीडियम के वो बच्चे वो बच्चियाँ जो दूसरे स्कूलों में असली तालीम हासिल करते हैं और कुरान करीम के तालीम से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला ने हाजिर किया। बहरहाल इस मजलिस का इंतज़ाम और बच्चों का रहन सहन और उन लोगों का तालीमी रुझान देख करके बहुत ही खुशी हुई कि हकीकत में जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने वही के शुरू ही में जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उन पर इक़रा और वो पढ़ना कोई इंग्लिश, कोई हिसाब, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफिया नहीं था, बल्कि वो पढ़ने का जो हुक्म था वो यही कलाम पाक था। शायर शार इन हजरात को बदला अता फरमाए, इन हजरात को अजर अजीम से नवाजे। ये बात हुई यहाँ के इस मदरसे के सिलसिले में। इस मदरसे में जितने बच्चे भी हमारे जितने साथी हमारे रहे हैं, माशाअल्लाह तमाम लोगों ने काफ़ी कम मुद्दत में हिफ्ज़ किया और आपने देखा कि कुछ मुद्दत में 27 हफ़ाज़ किराम ने यहाँ से हिफ्ज़ किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। बड़े बड़े मदरसे हो जाते हैं, बाद दफ़ा काफ़ी साल हो जाते हैं, इतने बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे मामूल है हर साल 2 साल बच्चे को होने में माशाअल्लाह निकलता है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान पाक की बहुत अजीम किताब है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये देखो हमने इससे पहले बहुत सी किताबें नाज़िल फरमाई। हमने तौरेत को भी नाज़िल फरमाया, हमने ज़बूर को भी नाज़िल फरमाया, हमने इंजील को भी नाज़िल फरमाया, लेकिन उनके बारे में ये कहा था बिमस्तुहफ़िज़ू कि उन लोगों को जो उलमा किराम थे, उस वक्त के जो पादरी थे, जो पोप थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उस किताब की हिफाजत करें। बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। वो लोग अपनी किताब की हिफाजत करते, अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को, जो आखिरी किताब है, जो आलमी किताब है, जो किताब को नाज़िल किया गया आखिरी नबी पर, रहती दुनिया तक के लिए नबी पर, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आप हज़रात जानते हो कि हम लोग जब डाटा कंप्यूटर में महफूज करते हैं उसका 2 तरीका होता है, एक हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को इसी तो महफूज किया, एक हार्ड कॉपी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब में लिखावट के जरिए और अगर कुरान पाक को तैयार करके सहीफों के जरिए से अल्लाह ने महफूज किया, और एक सॉफ्ट कॉपी के जरिए अल्लाह ने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने इस कुरान को महफूज किया। कोई मामूली बात नहीं है। ये 30 पारा और 30 पारा में जितने अल्फाज है, जितने लाइन है, जितने ज़बर ज़ेर पेश है, उनका आता है। अगर आप कुरान पढ़िएगा, आपको जो छोटा सा बच्चा 4, 5, 6, 7 साल जो हिफ्ज़ कर लिया होगा, आप गलत पढ़िएगा टोक देगा। अगर आप एक ज़बर में भी गलत कर दीजिएगा, जहाँ पे ज़बर है ज़ेर कर दीजिए, फौरन टोक देगा। अगर आपने हरकत में तब्दीली कर दी, वहाँ पे आपको टोक दिया जाएगा। इब्राहिम साहब और हमारे मेहमान उलमाए कराम और सरपरस्त हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि हमारे उलमाए कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी बातें पेश की हैं,
मजीद इस पर कुछ और कहना मुमकिन नहीं है। बच्चों के गार्जियन हजरात को से दरख्वास्त है कि वो आगे आ जाए और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी अरकान हजरात जनाब अयूब रजी साहब वो भी मौजूद है, जनाब मसरूर आलम साहब, जनाब हसन मुमताज़ साहब, जनाब फिरोज अहमद पाशा साहब, जनाब बिलाल अवल साहब, वो भी आगे तशरीफ लाए ताकि बच्चों को गुलपोशी हो और उनको कुरान और सनद दी जाए। तालिबा खमशा हाफिज़ा खमशा सैफ को बुलाता हूँ वो आए और उनके वालिद साहब और उनके दादा साहब भी यहाँ तशरीफ लाए। शब्द फरागत रुकन देंगे। इनकी शब्द फरागत जनाब हजरत मौलाना कहाँ से सर्टिफिकेट सीधा रखो, सीधा। ये माशाल्लाह स्कूल में 10 क्लास में तालीम हासिल करता है हाफिज़े के साथ साथ। इसके बाद हाफिज़ अब्दुल रहमान और उनके वालिद साहब को मैं दावत देता हूँ क्या है और उनकी कोई कोशिश की है। इब्राहिम याहिया कपूर, अब्दुल रहमान, तकरीर में शेख तकी इब्राहिम उसको दावत देता हूँ और जनाब डॉक्टर साहब से अपने इनामात हासिल अयूब रजी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और ये इनामात से नवाजे। साहब उसको मैं दावत देता हूँ वो आए मौलाना सऊद आजम साहब से इनाम हासिल करे और नात में अव्वल होने वाले मोहम्मद शाहिद मैं उनको दावत देता हूँ। उनके चाचा आए हुए हैं जो रिपोर्टर हैं, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो भी आए और अपने बच्चों के जो है हौसला अफजाई करें। होने वाले बच्चे अबू हमजा उनके गार्जियन आए हैं, अबू हमजा को मैं दावत देता हूँ कि आए और मशहूर भाई को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और बच्चों को इनाम दे। 2 आया है किरात में 2 आने देता हूँ। नाक में 2 बच्चे तो इसको दावत देता हूँ आए और हाफिज खालिद साहब को मैं दावत देता हूँ से खिदमत अंजाम दे रहे सादान इनको इनाम दिया जा रहा है, उनके हौसला अफजाई कीजिए। हाफिज खालिद साहब इधर बेटा मोहम्मद वैस
हसन अफरोज, असजद खान, मोहम्मद बिलाल, शाहबाज, साइना, अफरीन, कैफी खातून, जिनको इनाम मिल गया है उनके अलावा है ये बच्चे अंजुमन में शिरकत किए थे, उनको इनाम से नवाजा गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन व लामुन हर्फ कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। समिअना व अताअना ग़ुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। मौलाए करीम ए पाक परवरदिगार आलम ए अल्लाह बेशक गुनाहगार खताकार सियाहकार मुझे ऐ अल्लाह जो हमारे गुनाहों को खताओं को महज़ अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम बहुत बड़े मुज़लिम हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी नेमतों को इस्तेमाल करते हैं। ऐ अल्लाह हम ज़मीन में चलते हैं, सूरज की रोशनी में काम करते हैं। ऐ अल्लाह तमाम नेमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद ऐ अल्लाह तेरी ही नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह हम बड़े मुज़लिम हैं, हमारे जुर्मों को माफ़ फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ गफूरुर रहीम, ऐ अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह तूने सत्तारी का मामला किया है। ऐ अल्लाह वरना हमारे गुनाह एक दूसरे पर ज़ाहिर हो जाएं तो हम एक दूसरे को मुँह दिखाने के भी काबिल न रहे। ऐ अल्लाह दुनिया में जैसे सत्तारी की है आखिरत में भी सत्तारी का मामला करना। ऐ अल्लाह हमारे हुयूब पर पर्दा पोशी का मामला करना। ऐ सत्तारुज़्ज़ुनूब आका, ऐ अल्लाह हमारे साथ सत्तारी का मामला करना। ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह अभी तिलावत कलामुल्लाह की मजलिस में ऐ अल्लाह ये कुरान अज़ीम तूने हमारी हिदायत के लिए दिया। ऐ अल्लाह हम इसको पीछे छोड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह जिसकी वजह से हम ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। मौलाए करीम ऐ अल्लाह इस कुरान को हमें सीने से लगाने की तौफीक फरमा। ऐ अल्लाह इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा, सुबह व शाम इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा। आज दानिशगाह इस्लामिया के शोबा हिफ्ज़ में दानिशगाह इस्लामिया में 3 बच्चों ने और एक बच्ची ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। उसके लिए एक दुआया तकरीब का आज एहतमाम किया गया था। माशाअल्लाह इस तकरीब में हमारे बहुत सारे गार्जियन और हमारे दूसरे बैरूनी मेहमान भी तशरीफ़ लाए हैं। इन बच्चों के लिए दुआया प्रोग्राम में अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और मज़ीद ये 17 साल से ये अदारा चल रहा है। अब तक 27 बच्चों ने हिफ्ज़ कंप्लीट किया है और 118 बच्चों ने कुरान नाज़रा तालीम हासिल किया है। इसके अलावा 2 बच्चे एक बच्ची गुज़श्ता साल हिफ्ज़ कंप्लीट की है। इस साल जो है एक बच्ची भी हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुकी है। ये दानिशगाह का ख़ुसूसियत है। दानिशगाह इस्लामिया का एक नसबुलैन है कि दानिशगाह इस्लामिया के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो। इस प्रोग्राम के तहत, इस मनसूबे बंदे के तहत हम अदारा चला रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। हाजी इब्तरोफ प्रोग्राम ये तकमील कुरान पाक था और हमारे बच्चे जो कुरान शरीफ को हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनके लिए दुआया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दानिशगाह इस्लामिया
हाई स्कूल के एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट की तरफ से, और बच्चे ने अपने इस इदारे से इस मरतबा 3 तालिब इल्म और 1 बच्ची कुरान पाक को मुकम्मल किया है। उनके नाम, एक हाफिज़ा बच्ची का नाम है खनसा सैफ़, उनके वालिद साहब का नाम हाफिज़ सैफुल्लाह सष्टी नगर का है, और एक बच्चे का नाम है शेख तकी इब्राहिम जो इस इदारे के हाफिज़ हम उस्ताद है, और वो मैं हूँ। यानी मेरे बच्चा जो है इस बार हिफ्ज़ के साथ साथ इस इदारे में 10 क्लास में तालीम भी हासिल करता है। उन्होंने भी अपने कुरान पाक को मुकम्मल किया है। और एक बच्चे हाटन रोड में रहने वाले जनाब शाहनवाज साहब के बच्चे याहिया तहूर हैं, वो भी हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। वो भी दानिशगाह इस्लामिया में 9 क्लास में तालीम हासिल करते हैं। और एक तालिब इल्म बूदा लाइन में रहने वाले जनाब मोहम्मद आकिल साहब, उनके बच्चे हैं, उनका नाम अब्दुल रहमान है। वो भी इस बार जो है हाफिज़ हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। तो इसलिए उनके लिए दुआ की प्रोग्राम किया गया था, और तमाम गार्जियन हजरात इसमें तशरीफ़ लाए थे। और हमारे वो बच्चे जो इस इदारे से हाफिज़ बन कर के पहले निकल गए हैं, जो बहुत सारे मदरसे में मुदर्रिस का खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और बहुत से मस्जिद में इमाम व ख़तीब का खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे दूसरे इदारे में पढ़ते हैं, वो छुट्टी होने के बाद यहाँ आए हैं, वो भी इस मजलिस में शामिल हुए हैं। लिहाजा इस प्रोग्राम का ही मकसद था। अल्लाह ताला इसको कामयाब था। बतौर मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सऊद आलम साहब जो बीरभूम से आए हुए हैं, मदरसा दारुल उलूम नौमानिया के दर्स हदीस में मुदर्रिस हैं और हदीस का वो दर्स देते हैं। वो हमारे ही साथी हैं, और वहाँ से तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने इस मजलिस का जो इख्तिताम के दुआ उन्होंने फरमाया। नाज़रीन, वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़ NH19, आसनसोल चितरंजन रोड, आसनसोल। First time in Asansol, fully digitally coaching center. GR School, Smart education. स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर।
अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगा पाचिल ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। Need-based hospital and medical institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। गैर कानूनी तामीरात पर एक बार फिर होगी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि मेयर व MIC गुरदास चैटर्जी ने दिया अल्टीमेटम कि जिन लोगों ने भी गैर कानूनी तरीके से GT रोड या फिर फुटपाथ पर जगह घेरे हुए हैं, वे खुद से हटा ले ये तामीर, वरना 18 मार्च के बाद से शुरू होगी फिर से कार्रवाई। याद हो कि HLG अस्पताल के अपोजिट और DM दफ्तर के करीब गैर कानूनी तामीरात ढाने की कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है। শনিবার দিনে কিছু জায়গায় ভাঙা চলবে আর রবিবার দিনও ভাঙা চলবে, কিছু জায়গায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যাবে। আমরা কর্পোরেশন শুধু নয়, প্রশাসনিকভাবেও GT রোডে যে সব ধারে অবৈধভাবে যারা
নির্মাণ করেছে বা অবৈধ জিটি রোড, হটন রোড, সেগুলো আস্তে আস্তে 18 তারিখ অবধি আমরা ডেডলাইন দিয়েছি। আমাদের উপর থেকে প্রেশার আছে যে ভাই শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করো। তাও আমরা বেকারদের কথা চিন্তা করে এতদিন অবধি তারা বিজনেস করেছে, তাদেরকে বিভিন্ন সময় আমরা দোকানও দিয়েছি, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর বাইরে থেকে লোক এসে যতটুকু খালি জায়গা পাচ্ছে তাতে প্রথমে একটা ছাতনা করে বসে দিচ্ছে, তারপরে হয়তো দেখুন এক একজন 4 কাঠা 5 কাঠা জমির মধ্যে ব্যবসার মতো খুলে বসে দিয়েছে। যারা তাদের না রেভিনিউ পাই আমরা রেভিনিউ নিতেও চাই না। তাই শহরকে সৌন্দর্য করার জন্য আপনি দেখবেন যেমন সেন্ডারের রোডে কাঠের বাঁশের খুঁটি গেঁথে আমরা করেছি, সেরকম এই দিকটাও এই বাঁশের খুঁটি, কালকে এমআইসি মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে যে বাঁশের পুরো খুঁটি গেঁথে সব জায়গাগুলো এনকোজ মুক্ত করবো আমরা। অভিযান এখন আপাতত আপনার ভগৎ সিং মোড় থেকে এই আমাদের লোকো ট্যাঙ্ক মোড় অবধি এখন আসবো, আবার পরবর্তীকালে একদম জিটি রোড ধরে আমরা পুরো উষাগ্রাম অবধি যাব। गलत है, सामने आ रहा जाओ, सामने आओ, पानी नहीं है बाबू, जरा हम आ गया। आए नो आजा आजा आजा, फोटो हो जाए। 25 से हम लोग आए हुए, हम लोगों को पानी का बहुत किल्लत है। सुबह शाम 2 टाइम भी नल एकदम पानी नहीं गिर रहा है। मेयर हम लोग को आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर आपका पाइप को हम लोग ठीक कर देगा। इंजीनियर टेंडर भरा गया है। यही आश्वासन के साथ हम लोग जितने लड़के आए हैं सब वापस जा रहे हैं। आप लोग कौन इलाका में? वार्ड नंबर 25 हाजी नगर, ईदगाह वाली मस्जिद के पास। कितने दिन से पानी का समस्या है? पानी का समस्या 2-3 साल से है। 2-3 बार गया भी, सर्वे भी हुआ, सबको पाइप का टेंडर का ये में था कि हो जाएगा। जब नहीं हुआ तो हम लोगों बोला कि चले अब खुद मेयर से मिलते हैं जाकर। ऐसा क्या कारण है जो पानी नहीं मिल रहा? नीचे बस्ती है, ऊपर में सब मोटर लगा के टन ले रहा है, नीचे से पानी नहीं है तो आ रहा। नीचे से मत बोलिए, एक आदमी को लगभग कितना मोटर होगा जो टालता है? वो तो हम लोग नहीं ना गिन सकते हैं कितना मोटर होगा, कितने घर में कॉर्पोरेशन कनेक्शन दिया, वो तो कनेक्शन वाले को मालूम है। अच्छा, बता रहे हैं हम लोग तो अपना आए लेने। आप लोग का काउंसलर है, तो काउंसलर का भी हम लोग मुस्तफा था, उसको भी हम लोग बोले, वो भी आकर के 1-2 बार ये किया कि टेंडर प्रोसेस में है। तो आज हम लोग खुद चले आए हैं, सब घर वाले मिल करके कि प्रोसेस को देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। तभी आश्वासन मिला है कि 7 दिन में हो जाएगा। आपका नाम बोलिए? मोहम्मद कौसर अली। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।